السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دبنگ اعلان سے۔ صاف کہہ دیا، اپوزیشن کی ساری باتیں قبول، لیکن احتساب سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کرپٹ عناصر کو جیلوں میں نہ ڈالا تو ملک کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک چیز ہم مان نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ احتساب سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر، ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں بار بار یہ اپوزیشن والے، گورنمنٹ ہمارے اوپر انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ کون سی انتقامی کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی تک ایک نیب کا کیس ہمارے دور میں نہیں ہوا۔ اب اور کیا اسمبلی میں؟ اسمبلی نہیں چل رہی تھی۔ شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر، کمیٹی پارلیمنٹ میں احتساب کرتی ہے، اس کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، وہ دنیا میں مذاق اڑے گا۔ ہم نے انہوں نے کہا کسی اور کو بنا دو، نہیں اسی کو بنانا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بڑی مقدس ہے پارلیمنٹ، خود ہی پارلیمنٹ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ پارٹی کی ہماری لیڈرشپ ہے، ان کو کہا جو بھی یہ کہتے ہیں ان کی بات مانتے رہو۔ دھاندلی کے اوپر کمیشن بنانی ہے، بنا دو۔ کرپٹ لوگوں کو ہم نے جیلوں میں نہ ڈالا، اس ملک کا مستقبل خطرے میں، اس لیے ہم ساری آپ کی باتیں مان لیں گے۔ یہ نہ ہمیں کہنا کہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ کر یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت بچانے کے لیے مفاہمت کر لیں، جی یہ نہیں ہوگا۔ 160 ارب روپے کی انہوں نے زمینیں جو قبضہ ہوئے ہوئے تھے وہ چھڑوائی۔ مافیاز ہیں جن کے خلاف ٹکر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا کریں گے، جس کے لیے کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ سوہروز میں 1 لاکھ ایکڑ زمین واگزار کرائی، عارضی پناہ گاہیں قائم کی، پولیس میں خود احتسابی کا نظام بھی لائے۔ جنوبی پنجاب کو انتظامی بنیادوں پر صوبہ بنانے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے خود مختار سیکریٹریٹ 1 جولائی 2019 سے کام شروع کرے گی۔ تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز منظم کارروائی کی گئی، 1 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی واگزار کرائی گئی۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پولیس میں خود احتسابی کا نظام رائج کیا گیا۔ بے گھروں کو اپنی چھت دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم اپنا گھر کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دیے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کلین اینڈ گرین پنجاب کے تحت 1.25 کروڑ پودے لگائے گئے ہیں۔ چیف منسٹر کمپلینٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ عثمان بزدار کا یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنی حکومت کی 100 روزہ کارکردگی وزیر اعظم کے سامنے پیش کر دی ہے۔ عوام پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں، انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، انہوں نے جو ارادے کیے تھے میں سمجھ رہا ہوں اس کے لیے بھی ابتدا ہے۔ 100 دن کا مارجن بڑا کم تھا۔ عمران خان صاحب کا جو 100 روزہ پلان ہے میں اس سے بہت مطمئن ہوں، اور اسپیشلی میں تعلیم کے شعبے میں جو وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی انتظار ہے، امید یہی ہے انشاءاللہ کہ بہتری آئے گی۔ سب ایسے لوگ ہیں، ایک پولیٹیکل مافیا ہے اور ایک بالادست طبقہ ہے جو لوگوں کو مختلف لالی پاپ دے کے اور اپنا ٹائم نکال رہا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، ابھی ان کو 100 دن ہوئے ہیں، مزید 100 دن اور درکار ہوں گے، ایک دم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ لاہور میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا احتجاج۔ سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ متاثرین نے وزیر اعظم کی زمان پارک آمد کو غنیمت جانا اور احتجاج کرنے پہنچ گئے۔ احتجاج کے باعث کینال روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت رک گئی، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کو گھنٹوں ٹریفک جیم کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے 26 دسمبر کو عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی، جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا ہے کہ جنگیں موت اور تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ بھارت مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کی گئی غیر اعلانیہ جنگ کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے فخر الرحمان کی رپورٹ۔
आर्मी चीफ का नेवल एकेडमी कराची का दौरा, पासिंग आउट परेड तकरीब से दबंग खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत ने नेक जज्बे और खुलूसे नीयत के साथ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत इस पेशकश को पाकिस्तान की कमजोरी हरगिज न समझे। जंगे मौत और तबाही का सामान होती हैं। वक्त आ गया है हम एक दूसरे के बजाय भूख, अफलास, नाखवानदगी और बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ें। सिपा सालार ने मुश्किल हालात का जिक्र करते हुए कहा, माजी में हमें मशरकी और मगरबी सरहदों से चैलेंजेस का सामना रहा। मुसल्लह अफवाज की मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियां बेमिसाल हैं। हमें कायदे आजम और इलामा इकबाल के नजरिए के तहत आगे बढ़ना है। ये वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन सबके मफाद में है, इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा अमन अमल की हमायत की है। हम अभी दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के फेज से बाहर नहीं निकले थे कि दुश्मन ने हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर नया महाज शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को कहा कि हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मुअस्सर जवाब दिया जाए। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कराची की रौनकें बहाल हो गई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कराची की सड़कों पर आ गए। नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलते हुए खूब शॉट्स लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह है कायद का शहर, जहां कभी रात गए निकलना मुहाल था। चोर लुटेरों किलर्स का राज था, लेकिन आज अमन है, सुकून है। कराची की सड़क पर क्रिकेट खेलते लड़कों ने पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ खेलने की गुजारिश की, तो बंदूक से दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले जांबाज सिपाही ने शॉट लगाकर इस मैदान में भी बाजी मार ली। रात के 2:30 बजे मेजर जनरल आसिफ गफूर एंजॉय करते रहे। नौजवानों के साथ सेल्फियां भी बनाई। आर्मी का आसिफ गफूर साहब आए थे, हमारे साथ चंद 2-4 बॉल खेले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पैगाम में कराची का अमन लौटाने पर पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों का शुक्रिया अदा किया। शाहिद अफरीदी को भी मेजर जनरल आसिफ गफूर का शॉट पसंद आया। वीडियो ट्वीट की, कहने लगे टर्की में था वरना साथ क्रिकेट खेलता। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी शाहिद अफरीदी को जवाबी ट्वीट किया, लिखा, अगर अफरीदी वहाँ होते तो उन्हें कोई बैट नहीं देता। इस्लामाबाद पुलिस की हाजिर दिमागी और आर्टिस्ट की महारत ने शहरी की जान बचा ली। कॉमेडियन शफात अली जाफरी ने वजीर आजम की आवाज में बात की तो मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स फौरन नीचे उतर आया। वहाँ से वजीर आजम हाउस, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। फिर सुन लीजिए, वहाँ से वजीर आजम हाउस, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। है ना बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान की आवाज की तरह, लेकिन ये आवाज कॉमेडियन शफात अली की है, जिसे इस्लामाबाद पुलिस ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्लू एरिया में मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स ने जिद की कि वजीर आजम से बात ना कराई तो नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस ने कॉमेडियन शफात अली जाफरी से बात करा दी, जो आवाज बदलकर शहरी को नीचे उतारने में कामयाब हो गए। की बात ये है कि वो कायल हो गया इस बात पे, और ये मेंटली चैलेंज लोग जरा ज्यादा हसास होते हैं। पुलिस अफसर ने अपनाई गई हिकमत अमली की तफसील समा को बताई। शफात अली साहब जो कि एक मशहूर मीडिया पर्सनालिटी हैं, अगर वो बात करके इस शख्स को सेटिस्फाई कर लें और उसको नीचे उतरने पे कन्विंस कर लें तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस्लामाबाद में मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले मोहम्मद अब्बास का ताल्लुक सरगोधा के इलाके भलवाल से है, जो मुतालबात मनवाने के लिए वजीर आजम से बात करना चाह रहा था। अब आपको ये बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स को पाकिस्तान का वीज़ा ना मिल सका। काका और फीगो की दरखास्तें पाकिस्तानी अफसर ने वापस कर दी। ये इंकशाफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया कि ब्राज़ीलियन फुटबॉलर काका और पुर्तगाल के फीगो तशहीरी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान आना चाहते थे। सेक्शन अफसर से जब वो वीज़ा ना देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो काका को जानते ही नहीं, और फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि वीज़ा दरखास्तें वापस कर दी गई थी, लेकिन अब वो वीज़े दे रहे हैं। लाहौर की कैंप जेल में कैद मियां जावेद की हलाकत। मियां जावेद के अस्पताल पहुंचने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। जेल हुक्काम ने नहीं बल्कि पंजाब पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी। जहांगीर खान से मजीद बात करते हैं। जहांगीर खान, इसका मतलब है फुटेज से मुअम्मा हल हो गया है? ये जी फवाद, बिल्कुल फुटेज से भी और इससे पहले जो जेल हुकाम की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह वाज़ेह कर दिया गया था कि ये हथकड़ी जेल हुकाम ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकारों ने लगाई, जो कि एमरजेंसी के बाहर ये रिसीव करके एमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए थे। अब इस फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि जब उनकी सीआरपी की जा रही है ताकि उनकी हरकतें
कल को दोबारा से बहाल किया जाए। उस वक्त उनके दोनों हाथों में हथकड़ी मौजूद नहीं है और 2:14 पर जो जेल के अमला और अहलकार हैं वो उनकी CRP करने की कोशिश करते हैं और फिर 2:19 पर उनको यहाँ से एम्बुलेंस में मसनूई सांस भी देने की कोशिश की गई और इस दौरान फिर कामयाबी ना हो सकी तो उनको जो है वो सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया। IT जेल खाना जात ने इस हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है वो अब वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान। तबकाती निज़ाम तोड़ना आसान नहीं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हाथ खड़े कर दिए। कहा शहबाज शरीफ गिरफ्तार हों तो उन्हें बंगले में रहने की इजाज़त होती है। प्रोफेसर पर इल्ज़ाम लगे तो मौत के बाद भी हथकड़ी नहीं खोली जाती। कैंप जेल में मियां जावेद की मौत, जंजीरों से बंधी लाश की तस्वीर ने देखने वालों के दिल दहला दिए। लेकिन तबकाती निजाम के खिलाफ और कैदियों के हकूक की बात करने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत बेबस है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने झेलम बार से खिताब में मामले पर बेबसी जाहिर कर दी। जावेद है बेचारे, सरगोदा यूनिवर्सिटी में आपका इल्जाम लग जाता है, जेल की सख्तियां भी बर्दाश्त करेंगे, आप तशद्दुद का सामना भी करेंगे, आपको मरने के बाद भी आपकी हथकड़ियां नहीं उतारी जाएंगी कि कहीं आपकी रूह जो है वो ना निकल जाए, वो उसको हमने कैद में रखना है। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ पर तंज के तीर भी चलाए। ताकतवर तबके के लिए कानून का नफाज आसान नहीं। शहबाज शरीफ साहब जैसे ताकतवर लोग गिरफ्तार होते हैं वो हुकूमत को ऑडिट भी करेंगे, वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में अपने बंगले में ही रहेंगे तो उसको हम सब आपस में मजाक में जेल का करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल दिया। कहा कि लाशों पर सियासत फवाद चौधरी ही कर सकते हैं। उनका बयान बीमार ज़हनियत और बेबसी की इंतहा है। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने मियां शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ समेत फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को भी नामजद किया गया है। कामरान कियानी, नदीम ज़िया, मुनीर ज़िया और शाहिद शफीक भी मुल्जिमान में शामिल हैं। ज़िमनी रेफरेंस 3 फोल्डर्स पर मुश्तमिल है। पैरागॉन हाउसिंग केस में साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 5 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नैब के मुताबिक लोगों को ऐसी जमीन बेची गई जो उनकी मिल्कियत नहीं थी। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा बरादरान की नैब अदालत में एक और पेशी, जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मंजूर। नैब के वकील ने कहा कि साद रफीक ने कंसल्टेंसी और मुलाजमीन की तफसील नहीं दी। इनके रिश्तेदार फरहान अली बरतानिया से पैरागोन का अकाउंट चला रहे हैं। नैब का मौकिफ था कि मुल्जिमान ने हाजी रफीक नामी शहरी की 200 कनाल जमीन बेच दी, जिसने सदर पाकिस्तान तक दरख्वास्तें दी। फाजिल जज ने कहा कि मुतासरा शख्स ने सिविल अदालत से रजू क्यों नहीं किया। समाअत के दौरान साद रफीक के वकील ने कहा, हमने लोगों को घरों के नंबर भी दे दिए हैं। जिन 62 लाख रुपए की बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बता चुके हैं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कौमी असेंबली का रूल 108 नैब और मुल्की कवानीन से मुतसादिम है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की अमरीका में मुबैना खुफिया जायदाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर ले आए। गुज़िश्ता रोज़ PP रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा था कि अमरीका की जायदाद 20 साल पहले ही फरोख्त कर दी गई थी। क्या आसिफ अली जरदारी की अमरीका में प्रॉपर्टीज हैं? PTI रहनुमा अली जैदी आसिफ जरदारी की मुबैना जायदाद की दस्तावेज मंजर-ए-आम पर ले आए। अली जैदी ने ट्विटर पर आसिफ जरदारी की अमरीका में मौजूद मुबैना जायदादों की दस्तावेजात जारी की। समा से गुफ्तगू में अली जैदी ने कहा, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी तस्दीक करवा सकता है। जरदारी साहब इतने अगर सखी हैं कि लोगों के अकाउंटों में पैसे डालते हैं, शायद दूध वाले के दूसरे लोगों के अपार्टमेंट के टैक्स भी भरते हैं। वो मैं भी अपने घर के टैक्स भेजता हूँ, मेरे भी भरते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि मैनहट्टन की प्रॉपर्टी 20 साल पहले फरोख्त कर चुके हैं। मैनहट्टन का उनका जरूर था, लेकिन वो बिके हुए भी उसको
20 سال گزر چکے، بیچ چکے ہیں اس فلیٹ کو۔ علی زیدی نے آصف زرداری کی امریکہ میں زیر ملکیت مبینہ جائیدادوں کے پراپرٹی ٹیکس کی دستاویزات بھی ٹویٹر پر جاری کی، جس پر 2018 اور 19 کی تاریخ درج ہے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، تحریک انصاف نے عارضی طور پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ گورنر سندھ نے شیلٹر ہوم کا بھی افتتاح کر دیا۔ فیصل خان رپورٹ کریں گے۔ تحریک انصاف نے کراچی مشن کا آغاز کر دیا۔ گورنر سندھ سول اسپتال کے قریب فٹ پاتھوں پر زندگی بسر کرنے والوں کو عارضی طور پر چھت دینے پہنچے۔ شیلٹر ہوم کا افتتاح کیا تو وہاں ملنے والا کھانا بھی ٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد یہ جب تیار ہو جائیں گے تو یہ آسان اقساط پر ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن کی اپنی کوئی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بوند بوند کو ترستے کراچی والے خوش ہو جائیں۔ تحریک انصاف نے حکمت عملی بنائی ہے کہ شہریوں کو عارضی ریلیف دینے کے لیے RO پلانٹس لگائیں گے۔ پانی کا مسئلہ جہاں جہاں ہوگا وہاں پہ ہم پانی کے RO پلانٹ لگائیں گے۔ یہی نہیں، کراچی میں جگہ جگہ پھیلا کچرا بھی اٹھایا جائے گا۔ بلدیات جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی، اپنے علاقے میں نہیں کر رہی تو باقی شہر کو کیا کریں گے؟ لگتا ہے نیا سال کراچی والوں کے لیے پانی لائے گا، صفائی ستھرائی بھی ہو جائے گی۔ کیمرامین شاہد بلوچ اور ثناء اللہ کے ساتھ فیصل خان، سما، کراچی۔ کیا صنم بھٹو سیاسی میدان میں قدم رکھنے جا رہی ہیں؟ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی بہن لندن سے کراچی پہنچ گئی ہیں۔ پہلی بار پارٹی کے سیاسی معاملات سے صنم بھٹو کو آگاہ کیا گیا۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی بڑی بیٹھک لگی تھی۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جیالوں سے کہا تھا 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں آئندہ کا لاہے عمل بتایا جائے گا۔ لندن سے انٹری ہوئی شہید بے نظیر بھٹو کی بہن صنم بھٹو کی، جنہوں نے اپنے بھانجے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ بلاول نے بھی جھٹ سے اپنی خالہ کو سیاسی صورتحال، والد پر بننے والے کیسز کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں صرف بلاول نہ تھے بلکہ پارٹی کے صوبائی صدور بھی تھے۔ منی لانڈرنگ کیس میں زرداری کے سر پر لٹکتی ہوئی گرفتاری کی تلوار، کہیں ایسا تو نہیں پیپلز پارٹی نے نئی حکمت عملی بنا لی ہے؟ کیا صنم بھٹو اپنی بہن کی جگہ سیاست کے میدان میں قدم رکھنے والی ہیں؟ اور لگتا ہے شہباز شریف دم کرنے میں کامیاب ہو گئے، معاملات طے کر لیے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیا دعویٰ کر دیا۔ لیگی رہنما تہمینہ درانی کو بھی چیلنج کر دیا، بولے وہ پاکستان کے سب سے باخبر سیاسی ورکر ہیں۔ شہباز شریف نے تو اپنا کچھ نہ کچھ گوٹی فٹ کر لی ہے، دم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جو بات شہباز شریف اور چودھری نثار پہلے نواز شریف کو سمجھایا کرتے تھے وہ بہت دیر سے ان کی سمجھ میں آئی ہے۔ 24 تاریخ کو سنا ان کا فیصلہ ہے، منت سماجت پہ آئے ہوئے ہیں۔ تہمینہ صاحبہ نے کل جو کہا ہے کہ جی ان کو کسی ضرورت نہیں ہے سپورٹس کی۔ میں پاکستان کا سب سے باخبر سیاسی ورکر ہوں، کسی میں ہمت ہے تو تردید کرے، میں چونک میں بانڈا پھوڑ کے رکھ دوں گا اور پھر یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس ملک میں کبھی کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں ہوئی ہے، اسپتالوں میں چلے جائیں گے اگر سزا بھی ہوگی۔ شہباز شریف کے ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے یہ ایسا مریض ہے جس کا کھلی ہوا میں رہنا بڑا ضروری ہے۔ کبھی دنیا میں ایسی میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے؟ یہ کیا پروڈکشن آرڈر ہیں جی؟ خود ان کو بلاتے ہیں، آؤ شہباز صاحب ہمارا پوسٹ مارٹم کرو۔ دنیا میں ایسی اسمبلی نہیں دیکھی، جو سب سے بڑا چور ہے وہ احتساب کرے گا، وہ اپنے آرڈر خود جاری کرے گا۔ میں شہباز شریف 28 تاریخ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس بلاتا ہوں، سارے میرے دربار میں حاضر ہوں کیونکہ میں سب سے بڑا چور ہوں۔ یہ ہے ہماری اسمبلی کی اوقات۔ ادھر سیالکوٹ میں نون لیگ کی مقامی رہنما نصرت جمشید کے گھر پر فائرنگ ہوئی، حملے میں ان کی والدہ زخمی ہو گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شہزاد احمد کی رپورٹ۔ موٹر سائیکل سوار آیا، اچانک پلٹا اور واپس چلا گیا، پھر ایک گھر کی طرف رخ کر کے فائر کر دیا۔ واقعہ پیش آیا سیالکوٹ کے علاقے نشاط پارک میں۔ نون لیگ کی خواتین ونگ کی صدر نصرت جمشید کے گھر پر حملہ کیا گیا جس سے ان کی والدہ زخمی ہو گئیں۔ پہلے ایک فائر ہوا، پھر تھوڑی دیر مطلب سیکنڈ کا آپ کہہ لیں کوئی وقفہ ہوا ہوگا، پھر دوسرا ہوا ہے، پھر تیسرا۔ اس دوران مجھے چیخوں کی آواز آئی ہے، میں باہر آئی دیکھا تو تب تک میری مدر کو مطلب وہ بلٹ لگ چکا ہوا۔ گھر کی دیواروں پر بھی گولی کے نشانات ہیں، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ CCTV کی مدد سے فوٹیج سے ہم ان کے ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جیو فینسنگ کروا رہے ہیں علاقے میں ان کی۔ پولیس کے مطابق نصرت جمشید کا جائیداد پر خاندانی تنازع بھی چل رہا ہے۔
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का लाहौर में तलबा और तालिबात से खिताब। बोले, एक अखरोट एक पठान आपके सामने खड़ा है, लेकिन ज़माना तालिब इल्मी में मॉडलिंग भी करता था। एक अखरोट एक पठान आज आपके सामने खड़ा है। लाहौर में शुरू में मॉडलिंग भी की। मुझे अगर पठान या किसी की पीटीआई से नहीं बनती वो छोड़ दे, पाकिस्तान को सामने ज़हन में रख लें। I am a hardcore अखरोट, कबाइल हूँ। The more you suppress them, the more their resistance bar increases. स्टेज उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यहाँ से 100% मैसेज ना जाए। लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब का बड़ा भाई है। कंजूसी कम, दिल से तालियां बजाएं अपने लिए। PIA में इंतजामिया की पायलट्स पर मेहरबानियां, जहाज कम मगर पायलट ज्यादा। ऑडिटर जनरल की 10 साला रिपोर्ट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोइंग 737 ग्राउंड होने के बावजूद फर्स्ट ऑफिसर्स तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। फ्यूल की कीमतें कम होने के बावजूद रेवेन्यू निहायत कम रहा। खसारे के एतबार से लीगी हुकूमत के 5 साल बदतरीन रहे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूलिंग में गुज़श्ता 10 वर्षों में 436 अरब रुपए खर्च किए गए। लाहौर की जिला कचहरी में साबिक शौहर ने खातून को बुरी तरह पीट डाला। रावलपिंडी पुलिस की खातून एहलकार खुद एतमादी की मिसाल बन गई। फराह रब्बानी की रिपोर्ट। रावलपिंडी की मसरूफ सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाती ये है पुलिस की दबंग लेडी अनम नसीर। थाना वारिस खान की नाइब मुहर्रिर अनम कहती हैं, पुलिस की वर्दी ने हौसला दिया तो बाइक चलाना सीखी। बाइक पे आती जाती हूँ, मुझे से बहुत आसानी हुई है। मोस्टली लेडीज को कन्वेंस का प्रॉब्लम रहता है। अनम का बाइक चलाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि बाकी खवातीन के लिए भी सहूलत बन गया। हेड मुहर्रिर मुमताज कहते हैं, जहाँ इमरजेंसी हो अनम की बाइक फौरी पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम नहीं होता, वो कंप्लेंट होती है ऐसी, यहाँ पे खवातीन से मुतल्लिक़ कोई मैटर होता है तो ये खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाती है एक फ़ोन कॉल पे। खातून एहलकार को यकीन है कि जिंदगी में कोई भी काम नामुमकिन नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अनम का एतमाद और उसकी खुद इन्हिसारी न सिर्फ आम लड़कियों के लिए बल्कि उसके महकमे की खवातीन के लिए भी बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फराह रब्बानी, समा, रावलपिंडी। ग्लेशियर्स पिघलने से हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों को खतरात लाहक हो गए हैं। मंजर शिगरी की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर के सरकने और पिघलने से हुंजा के कई इलाकों को खतरा। महकमे मौसमियात की टीम ने दौरा किया और शशपेर ग्लेशियर के हवाले से 5 सफ़ात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि ग्लेशियर पिघलने से एक झील बन सकती है जिसके फटने से जेर तामीर 2 पन बिजली घर, शारे कराकरम पर तामीर पुल, हसनाबाद नाला और रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे एनडीएमए के साथ और मुझे उम्मीद है कि वो इमीडिएटली अपनी टीम्स भेजेंगे एंड इसकी थ्रेट असेसमेंट करके इसके मिटिगेशन मेजर्स हमें सजेस्ट करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो उसके। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद 5000 से जायद बड़े छोटे ग्लेशियर्स दर्जा हरारत के बढ़ने से तेजी के साथ पिघल रहे हैं। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। दुनिया को हेलो कहने का वक्त आ गया है। शुएब मलिक ने ट्विटर पर बेटे अजहान की तस्वीर शेयर कर दी है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने तस्वीर शेयर करके लिखा, जिंदगी किसी तफरीह से कम नहीं, दुनिया को हेलो कहने का वक्त आ गया है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी 2010 में हुई थी। उनके घर बेटे की विलादत रवां साल अक्टूबर में हुई थी। ठट्टा में ऊंटों को सहराई नहीं बल्कि समंदरी जहाज कहा जाता है। वजह क्या है, बता रहे हैं ज़ुहैर अली। सहराई जहाज ऊंट ठट्ठा में समंदरी कहलाता है। खारे पानी वाले इलाकों में पाया जाने वाला ये ऊंट कई नॉटिकल मील तक तैर सकता है, लेकिन ठट्ठा के ये मुनफरिद तैराक ऊंट बीमारी के बायस कम होते जा रहे हैं। इस वक्त इस ऊंटों में एक किस्म की बीमारी पाई जाती है। इनका मुंह पकना शुरू हो जाता है और पाँव पकना शुरू हो जाता है। दरियाई सिंध में पानी की कमी ने मैंग्रोव्स और पीलू के दरख्तों की पैदावार को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से खाराई नस्ल के ऊँटों की अफजाइश को भी नुकसान पहुँचा है। मैंग्रोव्स के जंगलात हैं जो वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो उनका जो चारा जो है वो तेजी से खत्म हो रहा है। ठट्ठा के ये समंदरी जहाज सकाफती रेस, तैराकी और माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़ुहैर अली, समा,
ठट्ठा। फैसलाबाद में क्रिसमस ट्री रोशन हुआ तो सेंटा क्लॉज भी तहाइफ लेकर पहुंच गया। अब्दुल्ला हद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में क्रिसमस तकरीबात का आगाज हुआ तो सुर्ख और सफेद लिबास पहने बच्चे खुशी से फूले न समाये। क्रिसमस ट्री है, मुझे वो भी अच्छा लगा, यहाँ का सारा कुछ बहुत अच्छा है। मैरी क्रिसमस। ऐसे में सांता क्लॉज भी खुशियाँ बांटने चला आया। से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सेंटा से मिलने के लिए और स्पेशली स्वीट्स खाने के लिए। तकरीब में मसीही बरादरी ने मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। कैमरामैन राहील असगर के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।